Once again, welcome to B.S. Yadav sir classes. Already we have completed the direct and indirect speech introduction and the assertive sentences and the interrogative sentences. In this class, today we are going to learn how to convert the direct speech of the imperative sentences into indirect speech. I hope that you all are enjoying the classes and learning your grammar with B.S. Yadav sir. Today we will learn and we will discuss the few sentences which are under imperative sentences. So our today's topic is the indirect speech of imperative sentences. Now these imperative sentences, what type of sentences are there, and we are going to discuss, we are going to learn so many in these imperative sentences. Just see here the detail which we are going to study in this class. That is, first the imperative sentence, then there will be the emphatic imperative sentence, and then there will be the imperative with question tags and optative sentences, then exclamatory sentences, then the sentences beginning with sir or madam, and the sentences beginning with please words, and so many more. We will learn how to convert this type of sentences into indirect speech. So let's begin with the first one, that is the imperative sentences. Imperative sentences. First of all, we should know that what are the imperative sentences. Imperative sentences, in such type of sentences we express order, command, request and willingness. All such type of sentences are called imperative sentences. ऐसे sentences जिनमें हम order, command, request का भाव प्रकट करते हैं वो imperative sentence कहलाते हैं. Now, how to change these imperative sentences into indirect speech? Let's see with some examples. See here, I have written 3 sentences of imperative. See the first one, that is, he said to me, help your neighbor. Now this, the reported speech, this part, it contains the imperative sentence. Why it is imperative sentence? The very main identification of the imperative sentence is that the sentences most probably start with the verb. ऐसे sentences verb से शुरुआत होते हैं. तो देखिए यहाँ हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सेंटेंस है वो इंपेरेटिव है. क्यों? क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है हेल्प. और एज यूजुअल आप जानते हैं कि जो हमारा इन्वर्टेड कोमा से जो पहले वाला जो पार्ट है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है. अब हम जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारे इनडायरेक्ट के जो जनरल रूल्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, द 6 स्टेप फार्मूला, वो यहां सब लागू होंगे. बट द मेन थिंग दैट वी शुड add here in these rules, some special rules that we should learn here while converting the imperative sentences, that is, we have to put some words like order, command, request. Such type of word we have to apply here in place of this verb said. जब हम रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है उसको जब हम इनडायरेक्ट में लिखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए, तो हमें इस तरह से कुछ ये हमें वर्ब लगानी होती है. यहाँ हम एक और वर्ब प्रोहिबिट, उसका भी हम यूज करते हैं. तो ये इस तरह से वर्ब्स हमें चेंज करनी पड़ेगी. सबसे पहले तो हमारा जो स्टेप है वो ये है, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है उसको हम इनमें से किसी एक वर्ब को लेंगे और वो किस
प्रकार से लेंगे हम जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो क्या सेंस है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका भाव क्या है, वो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इसमें से इस वर्ब को लेंगे। तो देखिए हम किस प्रकार से इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, उसे देखकर हम सीखते हैं कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस का कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, हम शुरुआत करते हैं इसको कन्वर्ट करने की। तो ही सेड टू मी, यहां देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हम देखते हैं आगे कि क्या लिखा हुआ है जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, हेल्प योर नेबर। हेल्प योर नेबर मीन्स ये एक तरह का सजेशन है या एक तरह की हम कह सकते हैं एडवाइस है। हाँ, हम यहाँ एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एडवाइस। ये वर्ड भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखिए इस फर्स्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा हमने बताया था कि हमारी ये जो वर्ब है सेड, उसको हम इसके रिपोर्टेड स्पीच का क्या सेंस निकल रहा है उस सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग इसको रखने की कोशिश करेंगे। वहां कहा जा रहा है कि हेल्प योर नेबर, इट मीन्स इट इज ए टाइप ऑफ एडवाइस। इट इज ए टाइप ऑफ एडवाइस। तो हम यहाँ सेड की जगह एडवाइस रख सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी। तो ये हमने रिपोर्टिंग वर्ब कुछ इस तरीके से चेंज कर दी। क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है इंपेरेटिव सेंटेंस में, वो हम रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार का भाव है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करते हैं, और इस तरह से ये वर्ब्स हम लगा सकते हैं। इनमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टेल भी हम लगा सकते हैं और हम आस्क भी लगा सकते हैं। ये कुछ वर्ब्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखिए करने जा रहे हैं इसको चेंज इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को बदल दिया, ही एडवाइज्ड मी। नाउ इन दिस imperative sentence, when we change it into indirect, we do not put that conjunction. हमें यहां that conjunction नहीं लगाना है, उसके बदले हमें यहां ये जो हमारा जो इंपेरेटिव मूड है, ये जो सेंटेंस का जो इंपेरेटिव मूड है, इसको इंफिनिटिव मूड में कन्वर्ट करना है। कौन से मूड में कन्वर्ट करना है? इंफिनिटिव मूड में। और इंफिनिटिव मूड बच्चों आप सभी जानते हैं वो हमारा होता है क्या लग के? टू लग के। ये हमारा इंफिनिटिव मूड है। हम जब इंपेरेटिव सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इंफिनिटिव मूड को वहां अप्लाई करना है। और इंफिनिटिव कैसे बनता है? टू लग के बनता है। क्लियर? जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहां दैट ना लगा के कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाते समय किसका इस्तेमाल करना है? टू का इस्तेमाल करना है। क्लियर? तो देखिए बच्चों, अब हमने यहां रिपोर्टिंग वर्ब को यहां बनाया, ही एडवाइज मी। अब हमें यहां इंफिनिटिव मूड टू। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस imperative sentence while we convert it into indirect speech. Clear? To after that, see that what is there? Help your neighbor. Help your neighbor means there now no need to change the other things. Simply we have to write he advised me to help. No need to change the tense. Tense no need to change. Simply we are applying here the to infinitive, removing the comma and inverted comma, converting the verb of the reporting verb, and then the general thing, that is the change of the person. It we have to apply here. ये हमें करना पड़ेगा. Now this second person, possessive case, it will convert according to the object, me. Now, what we will write here? He advised me to help my neighbor. This is the real indirect of this direct speech. ये इस डायरेक्ट स्पीच के इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट इस तरह से हो जाएगा। He advised me to help
माई नेबर। देखिए बच्चों, ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी। जब इंपेरेटिव सेंटेंस सामने होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को हमने इसके हिसाब से यहाँ साइड की जगह एडवाइज कर दिया। ही एडवाइज्ड मी टू हट जाएगा। देन हमने बताया आपको जब इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं तब टू यूज करते हैं, इंफिनिटिव टू। नो चेंज ऑफ द टेंस, सिंपली वी राइट एज इट इज। सो ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प चेंजिंग द पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट because it is second person. He advised me to help my neighbor. तो देखिए इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था डायरेक्ट स्पीच में, वो इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच उसका बन गया। अब हम इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। Now what is the second sentence here? The teacher said to the boys, don't make a noise. Now here we have used here the negative sense. Don't make means here in this we are asking someone not to do something. हम किसी से कह रहे हैं कुछ चीज नहीं करने के लिए, उसको रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। इंपेरेटिव नेगेटिव है यहाँ सेंस। तो देखिए उसको हम किस तरह से इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसा हमने पहले आपको कहा था कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारी यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब सेड। अब आगे हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है जो रिपोर्टेड स्पीच में, वो कहता है डोंट मेक ए नॉइस। मींस हम इसको मान सकते हैं हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को मना कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो वर्ब हम इसमें से यूज कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं ऑर्डर या कमांड। तो हम जैसे यहां इसको लिखेंगे द टीचर, इसको हम इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट कर देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड, सेड की जगह हमने क्या लगा दिया, ऑर्डर। सेड की जगह हमने क्या लगाया है, ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर्ड टू हट जाएगा, टू हमेशा सेड के बाद लगता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहां टू नहीं लगाएंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। तो इस तरह से कुछ ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट हमने इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब वो आगे देखिए, अब यहां आपको मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव में है। रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव में, जब रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव में होता है तो हम इंफिनिटिव जो टू लगाते हैं, उस टू इंफिनिटिव से पहले हम नोट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नोट, और फिर उसके बाद टू। कुछ इस तरह का हम फॉर्मेट इस तरह का अप्लाई करते हैं जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इस प्रकार से हो, नेगेटिव में हो। जब हमारा सिंपल हो, साधारण हो, तब हम सीधा टू इंफिनिटिव लगाते हैं, और जब हमारा नेगेटिव में हो तो हम नोट लगाकर फिर टू इंफिनिटिव लगाते हैं। क्लियर? तो देखिए बच्चों, अब यहां हम इसको इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा ये है रिपोर्टेड स्पीच, डोंट मेक ए नॉइस। नाउ द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, अब डोंट मेक है तो पहले हम नोट लगाएंगे, नोट टू, जैसा मैंने बताया था आपको उसी प्रकार से हमने किया, नोट टू, फिर वही नो चेंज ऑफ टेंस, नोट टू मेक ए नॉइस। This way we can change this direct speech into indirect speech. तो हमने जैसे इसको चेंज किया इनडायरेक्ट में, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइज। अब देखिए हमने यहाँ इस साइड की जगह ये ऑर्डर्ड वर्ब लगाई, यहाँ हम एक और वर्ब भी अप्लाई कर सकते हैं, वो हम प्रोहिबिट, हम यहाँ प्रोहिबिटेड भी यूज कर सकते हैं। द टीचर प्रोहिबिटेड द बॉयज, प्रोहिबिटेड मीन्स मना करना एक तरह से, द टीचर प्रोहिबिटेड द बॉयज, तो वो वर्ब भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, व्हाट इज दैट? द पियोन सेड टू द प्रिंसिपल, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days. नाउ द पियोन सेड टू द प्रिंसिपल, grant me leave for 2 days. Now see here. Now what is this here? In this reported speech,
ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं। एक तरह से ये क्या है, रिक्वेस्ट है, दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ द पियोन टू द प्रिंसिपल, और इस रिक्वेस्ट को हम दूसरी तरह से आस्क जो हमारी वर्ब है वो लगाकर भी हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको अब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो किस तरह से हम इसको करते हैं, द पियोन सेड। सबसे पहले हम ये जो वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब की, इसको हम चेंज करेंगे और हम इसको लिखेंगे द पियोन। अब हम सैड की जगह जैसे मैंने बताया हम यहाँ इसको रिक्वेस्ट, या तो हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड या हम लिखेंगे आस्क्ड। हम इसको यहाँ आस्क्ड लिखकर करते हैं, द पियोन आस्क्ड। अब टू नहीं आएगा, ये चीजें आप ध्यान देते चलिए बच्चों। अब टू नहीं आएगा, द पियोन आस्क्ड द प्रिंसिपल, द पियोन आस्क्ड द प्रिंसिपल। Now simple, what we will apply here, to infinitive, then grant, to grant. Now this person, this is the first person, we have to change। देखिए जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स, वो फॉलो होते हैं। सिर्फ क्या इसमें अलग चीज होती है, वो अलग चीज ये होती है कि हम जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो दैट कंजक्शन नहीं लगाते, उसकी जगह हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। दूसरी बात, हम टेंस चेंज नहीं करते। बाकी हमारे जो पर्सन है, प्रोनाउन है, वो चेंज होंगे, और हमारे जो टाइम वर्ड है वो चेंज होंगे, और हमारे जो ये वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब्स हैं, वो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये कुछ चेंजेज हमें करेंगे जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने टू इन्फिनेटिव के बाद सीधा ग्रांट लिखा है। अब हम इस जो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है पियोन, तो पियोन के लिए हम यहाँ आ जाएगा हमारा हिम। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ गया। The peon asked the principal to grant him leave for 2 days. Leave for 2 days. This way we convert this direct into indirect. Simple. The peon said to the principal, the peon asked the principal, grant me leave for 2 days. कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के टू इन्फिनेटिव लगाया, टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। अब हम यहाँ जो ये आस्क्ड लगाया है, इस आस्क्ड की जगह हम रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, रिक्वेस्टेड भी सही होगा। तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द पियोन रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। So this way we can change the direct speech of some imperative sentences into indirect. Clear how to change the imperative sentence into indirect speech. Now coming to our second type of sentence, that is emphatic imperative sentences. Emphatic imperative sentences को हम देखते हैं कि उनको हम किस तरह से indirect में convert करते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम किसी चीज को हम प्रिसाइज करते हैं, मतलब हम किसी चीज का उसमें दबाव बनाते हैं, मतलब कोई एम्फेसिस रखते हैं, उस पर एम्फेसिस देते हैं, उसको जोर देते हैं, मतलब उस पर जोरदार बनाने के लिए उसको हम इस तरह से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू कंप्लीट योर होमवर्क मीन्स वी आर अप्लाइंग द वर्ब डू डिड बिफोर द सेंटेंसेस, they become emphatic sentences। जैसे हम कई बार कहते हैं I do need your help, I do need your help, जरूरत है, मतलब किसी चीज के किसी बात पर, किसी वर्ब पर जोर देना, वो emphatic कहलाता है। तो देखिए यहाँ कुछ सेंटेंस हैं जो emphatic imperative है, जैसे he said to me to cast your vote means some emphasis is there,
in this reported speech. What is the emphasis? To cast the vote, means वोट देने पर जोर दिया गया, दबाव दिया गया. That is the emphatic. And in the second sentence also you see there, the teacher said to the student, do complete your homework. Means some pressure, some force is there. To put some force, we use the do verb before the sentence, and that become emphatic. Now how to convert these direct speech of the emphatic imperative sentences into indirect speech? Now let's see the first. Before taking this first, I would like to tell you that while converting it into indirect speech, we should not use this do. इस do को हम हटा देते हैं. सिंपल है, सिर्फ इस do को हम हटा देते हैं और वो हमारा जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाता है. देखिए कैसे हम करते हैं. He, now, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा, ये जो वर्ब है इसको हम यहाँ जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसके मूड के, उसके भाव के हिसाब से उसको हम चेंज करेंगे. तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, वो वोट को कास्ट, वोट डालने के लिए कहा जा रहा है. तो हम यहाँ हम लिख सकते हैं ही एडवाइज्ड या ही ऑर्डर्ड, कोई सा भी हम लिख सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, या हम रिक्वेस्ट भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. ये कोई सा भी वर्ब हम यहाँ लगा सकते हैं, वो सभी यहाँ लागू हो सकते हैं, चल सकते हैं. तो हम यहाँ लिखते हैं ही एडवाइज्ड मी. नाउ हमें यहाँ डू हटाना है और डू का कोई यहाँ यूज नहीं है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं. वही हमें जो हमने पहले देखा था टू इन्फिनेटिव लगा के हम इसको कंप्लीट कर देंगे. तो ये हो जाएगा ही एडवाइज मी टू कास्ट. ये योर को और बदल देंगे हम. योर किसके हिसाब से बदल जाएगा, इस मी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से. तो ही एडवाइज मी टू कास्ट माई वॉट. सिंपल. इस तरीके से ये हमारे जो एम्फेटिक इंपेरेटिव सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में बदल जाएगा. डू से कंफ्यूज नहीं होना है. जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डू हट जाता है और वही टू इन्फिनेटिव लगाकर हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं. अब देखिए सेकंड सेंटेंस को देख लीजिए. सेकंड सेंटेंस हमारा कहता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट. अब ये जो टीचर स्टूडेंट से कहता है, क्या कहता है, डू कंप्लीट योर होमवर्क. तो हम इसको यहाँ वर्ब को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड कर सकते हैं हम इसको यहाँ पे. द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट. टीचर ने किसको ऑर्डर किया, स्टूडेंट को. क्या, टू. डू हट जाएगा, सिर्फ क्या लगेगा, टू कंप्लीट योर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट. वो हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है. टू कंप्लीट हिज या हर, बिकॉज इट इज द कॉमन जेंडर. स्टूडेंट इज द कॉमन जेंडर. देयर मे बी द गर्ल, देयर मे बी द बॉय. द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू कंप्लीट हिज या हर homework. This way we can change the emphatic imperative sentences into indirect speech. Now coming to the third type of imperative sentences which are having the question tag. Imperative question tags means जिनके पीछे yes और no में उसका जो है आंसर मांगा जाता है, वो क्वेश्चन टैग कहलाते हैं. चलिए उनको हम देखते हैं कि इस तरह के अगर इंपेरेटिव के सेंटेंसेस होते हैं तो उनको हम इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. देखिए मैंने दो सेंटेंस यहाँ लिखे हैं आपके लिए. पहला है शी सेड टू मी शट द डोर. विल यू मीन्स दिस इज द क्वेश्चन टैग. विल यू मीन्स क्वेश्चन टैग जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है. जैसे मैं आपसे कई बार इस तरह से लास्ट में ये पूछा जाता है, उस स्पीकर की या जिससे हम कुछ पूछ रहे हैं उसकी उसमें
उसका आंसर, उसका रेस्पॉन्स दिया जाता है और वो रेस्पॉन्स उसका यस और नो में हो सकता है। क्वेश्चन टैग के जो आंसर होते हैं वो यस या नो में होते हैं मोस्टली। और क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो कई बार इनडायरेक्ट में भी इस तरह के सेंटेंसेज आ जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेज क्वेश्चन टैग से, तो उनको हम बदलते हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं, सीख लेते हैं यहाँ। तो दूसरा सेंटेंस हमारा, ही सेड टू मी कम ऑन टाइम विल यू, ये क्वेश्चन टैग है। तो देखिए सीधी सी बात है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग के साथ, जब हम उनका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो क्वेश्चन टैग वाला जो पार्ट है इसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, इसका हम कुछ नहीं करते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। जस्ट लीव इट एंड सिंपली चेंज द इंपेरेटिव सेंटेंस, जो हमने पहले किया उस प्रकार से कर देते हैं और क्वेश्चन टैग को लीव इट, छोड़ देते हैं उसको। देखिए कैसे हम इसको करेंगे, शी सेड टू मी शट द डोर विल यू। नाउ सी, ये वर्ब हम चेंज करेंगे, इसको हम लगा सकते हैं यहां आस्क्ड, शी आस्क्ड मी, इंफिनिटिव टू आ जाएगा, टू इंफिनिटिव इनवर्टेड कोमा कोमा हट जाएंगे क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हमने सीखा है टू इंफिनिटिव लगाएंगे। शी आस्क्ड मी टू शट द डोर, स्टॉप हियर। नाउ नो नीड टू डू एनीथिंग ऑफ दिस क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग को हम इस प्रकार से क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसी प्रकार देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, ही आस्क्ड me to come on time. No need to do anything of this question tag will you. इसका हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली हमें इस प्रकार से जो हम इंपेरेटिव सेंटेंस को जो चेंज कर रहे हैं उसी प्रकार से इनको चेंज कर कर लिख देना होता है। तो ये हमारा ये जो इंपेरेटिव क्वेश्चन टैग्स के जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? Now next type of sentences, that is the optative sentences. Now we are going to learn here how to change the direct speech of optative sentences into indirect speech. Optative sentences, these sentences, they are having in them the expression of wish, pray, blessing and curse. इस तरह के जिन सेंटेंसेज में जहां प्रार्थना होती है, जहां हमारा कोई अभिशाप होता है या हम किसी को हम कोई वरदान देते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेज ऑप्टेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। विश, प्रेयर की जाती है या ब्लेसिंग्स की जाती है या कर्स किया जाता है, दैट आर द ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। और उनमें अक्सर हम जो ये हमारा वर्ड है मे, इसका यूज होता है, मे वर्ड हम यूज करते हैं विश के लिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हमारे कई बार आ जाते हैं और उनका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, तो वो हम किस प्रकार से बनाएंगे, दैट वी विल लर्न हियर। नाउ सी द फर्स्ट वन इज देयर, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। जैसे हमने कहा कि यहाँ या तो विश होगी या कर्स होगा या ब्लेसिंग होगी या प्रेयर होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो कहा जा रहा है he said to me may you live long, ये विश किया जा रहा है, this is the wish for you. Now how to convert this direct speech into indirect speech? Let's see here. Very first, see that how we will change such type of sentences into indirect speech. Very first, in every reporting verb we have to change the verb of the reporting verb. तो यहाँ जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, उसके अकॉर्डिंग हम, क्योंकि यहाँ विश किया जा रहा है, किसी को विश किया जा रहा है, तो हम यहाँ सेड की जगह विश कर देंगे, ही विश मी, ही विश्ड मी। अब यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद हम दैट कनेक्टर का यूज करेंगे, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। दैट देखो, अभी हमने देखा था इंपेरेटिव सेंटेंसेज में हमने दैट कंजक्शन नहीं लगाया था, वहां हमने इंफिनिटिव टू यूज करते हुए काम किया था।
लेकिन अब हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस जब आ गए हैं, अब वहां हमें फिर से दैट कंजक्शन लगाना पड़ेगा जब इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तब। तो देखिए यहां ही विश्ड मी दैट नाउ, जैसा आपने देखा था, अब हम जो ये मे यू लिव लॉन्ग, अब हम यहां सब्जेक्ट पहले ले आएंगे। ये जो शुरू हो रहा है सेंटेंस, ये मे से शुरू हो रहा है, लेकिन यहां हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब हम सब्जेक्ट पहले लाएंगे। और सब्जेक्ट में जो हमारा प्रोनाउन यू है, ये सेकंड पर्सन है, इस सेकंड पर्सन को भी हमें चेंज करना होगा। जैसा इनडायरेक्ट कहता है, तो इस सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव केस है मी, आई का फर्स्ट पर्सन, तो ये जो यू है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही विश्ड मी दैट आई। अब ये जो मे है, ये जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये माइट हो जाएगा। ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, और फुल स्टॉप केवल एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी हट जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से, ये देखिए बच्चों, ये जो डायरेक्ट स्पीच है जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस का, वो इस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलेगा। एक बार वापस से देख लेते हैं हम किस तरह से हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, क्या क्या रूल्स, क्या क्या नियम हमने इसमें देखे, सीखे। अब देखिए वर्ब को हमने चेंज किया, क्योंकि विश किया जा रहा है किसी के लिए, तो हमने विश्ड कर दिया, ही विश्ड मी। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद यहाँ दैट कंजक्शन का हमें यूज करना पड़ रहा है, तो हमने दैट कंजक्शन लगाया, ही विश्ड मी दैट। फिर सब्जेक्ट पहले लाएंगे और मेक को हम बना देंगे माइट। मेक किस में बदल जाएगा? माइट में। तो हो जाएगा ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आपने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस हमने कन्वर्ट किया। अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस। दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। दे सेड, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं दे। अभी जो हमारी वर्ब है सैड, इसको हम मे गॉड मेक अस हैप्पी। नाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग टू गॉड, वी आर प्रेइंग टू गॉड। तो यहां लिख देंगे दे प्रेड दैट, कंजक्शन दैट लगाएंगे, दे प्रेड दैट गॉड might make us, किसमें बदल जाएगा? them में, happy। इस तरीके से हम ये जो हमारा सेकंड सेंटेंस था उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। they said, ये हो जाएगा they prayed, फिर कंजक्शन दैट लगेगा, दैट गॉड पहले आ जाएगा, गॉड में माइट में बदल जाएगा, माइट मेक अस दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका दे प्रेड दैट गॉड माइट मेक देम हैप्पी। नाउ सी द थर्ड वन, ही सेड टू हर मे यू डाई सून, मे यू डाई सून। अब ये यहाँ पे उसको एक तरह से उसको अभिशाप है, एक तरह से ये यहाँ विश और प्रे नहीं है, ये उसको एक तरह से बद्दुआ है, अभिशाप है। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो जो ये वर्ब है हम सेड, इसके जगह हम ये कर्स जो वर्ब है ये हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ही सेड टू हर, ही कर्स्ड हर। ये क्या हो जाएगा? ही कर्स्ड हर, बद्दुआ है, अभिशाप है, तो कर्स्ड वर्ब हो जाएगी सेड की जगह, ही कर्स्ड हर दैट। कंजक्शन हम लगाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जैसे मैंने बताया आपको दैट कंजक्शन लगाना होता है, वो हमने लगा दिया। अब हम देखेंगे यहाँ सेकंड पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसका जो नॉमिनेटिव केस है वो हमारा आ जाएगा यू की जगह, तो हर का हो जाएगा सी। ही कर्स्ड हर दैट सी। फिर वही मेक अ माइट, माइट डाई सून, डाई सून, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये जो थर्ड था हमारा सेंटेंस वो
इनडायरेक्ट में इस तरह से बदल जाएगा, he cursed her that she might die soon। तो देखिए किस तरह से हमने यहाँ जो हमारे ये ऑक्टेटिव सेंटेंसेस थे उनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया। ये यहाँ हमने 3 एग्जांपल्स देखे। वो मोटा मोटी जो बात है ऑक्टेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये ध्यान रखना है, इस तरह के सेंटेंसेस में मे यूज होता है तो उस मे को हमें माइट में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट पहले लाना है और दैट कंजक्शन का भी यूज करना है। और एज यूजुअल जो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब्स होती है वो हमें इस तरह से विश, प्रे, ब्लेसिंग या कर्स लिखकर उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज exclamatory sentences. How we will change the exclamatory sentences into indirect speech. As you know, exclamatory sentences are those sentences which express some strong or sudden feelings. Means they just show some expression which are very sudden and very strong, and they are having the exclamatory marks in their end. And we will also learn at the same time the sentences which are beginning with sir or madam. जिन sentences की शुरुआत में sir और madam आता है उसका भी हम indirect speech कैसे बनाएंगे वो भी हम यहाँ अभी देखेंगे। और उसके बाद जिन sentences में starting में please word आता है उसका भी हम देखेंगे कि जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज देखिए, हम यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, उसको देखते हैं। शिवम सेड, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। तो दिस वर्ड हुर्रा, दिस इज द वर्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड, इट इज शोइंग द एक्सक्लेमेशन, सडन एक्सप्रेशन इज देयर। और जब इस तरह के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं उनमें जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब हम इस तरह से जो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उस पर ध्यान दीजिए, उसको हम कुछ इस तरह से हम लिखेंगे कि exclaim with joy. If some happiness is there, then we will write exclaim with joy. Or if some unhappiness is there, then हम उसमें लिखेंगे exclaim with sorrow. दुख की बात है तो sorrow वर्ड से हम उसका शुरुआत करेंगे इंडायरेक्ट बनाते समय। खुशी की बात है तो joy से। और कोई हमें खेद प्रकट करना है, कोई हमें ऐसा कि हमने कुछ गलत किया है तो उसके लिए हम exclaim with contempt। तो इस तरह से हम इन वर्ब्स का हम यूज करेंगे जब हम किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। वापस से देख लीजिए, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो एंड एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। इस तरह की जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम इनके साथ इनको उनके जगह लगाते हुए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम जब सेंटेंस की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ उसने कहा शिवम सेड। अब ये जो हुर्रा वर्ड है, वी हैव वोन द मैच, ये हैप्पीनेस है, इट इज द मैटर ऑफ जॉय। तो हम यहाँ इसको वर्ब को हम इस तरह से लिखेंगे, शिवम शिवम एक्सक्लेम विद जॉय। क्लियर? क्योंकि ये हैप्पीनेस का साइन है तो हमने ये जो वर्ब बनाई शिवम सेड, इसकी जगह हमने याद किया शिवम एक्सप्लेन्ड विद जॉय। और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हर इनडायरेक्ट में हटता है, यहां हम दैट कंजक्शन भी अप्लाई करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहां हम दैट कंजक्शन को भी लगाएंगे। तो हमने यहां दैट कंजक्शन अप्लाई कर दिया। हुआ क्या? शिवम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। नाउ दिस वर्ड हुर्रा, it is covered in this exclaimed with joy। तो उस हुर्रा को हम वहां छोड़ देते हैं, वो हमारा किस में कवर हो गया? इस वर्ब में कवर हो गया, exclaimed with joy that। now this we, ये जो we है ये हम अब
अभी हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे यहाँ सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन का प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो हम थर्ड पर्सन का जो ये जो स्वयं के अकॉर्डिंग उसको हम जब चेंज करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा स्वयं एक्सप्लेन विद जो दैट वी किस में बदल जाएगा, दे में, दैट दे टेंस चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। दे हैड won the मैच, ये चेंज हो जाएगा। देखिए हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस एक्सक्लेमेशन का वो इस प्रकार से इनडायरेक्ट उसका बन जाएगा। ये हमने 4 सेंटेंस लिखे थे, ये तो हम अभी सीखेंगे देखेंगे। हमने फर्स्ट सेंटेंस को ये जो इनडायरेक्ट बनाया वो इस तरह से बनाया, शिवम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट कंजंक्शन हमने लगाया और वर्ब हमने लगाई एक्सक्लेम विद जॉय क्योंकि ये हैप्पीनेस के साइन है। और फिर हमने जो वी की जगह हमने यहाँ ये थर्ड पर्सन आ गया प्लूरल दे, और वर्ब हमने जो टेंस जो हमने डायरेक्ट स्पीच का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस बना दिया, दे हैड वॉन द मैच। तो इस तरह से देखिए हमारा ये जो डायरेक्ट स्पीच था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट कंजंक्शन यूज करते हैं, और वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी वर्ब को हम जो 3 हमने बताई, एक्सक्लेमेशन विद जॉय, एक्सक्लेमेशन विद सोरो, एक्सक्लेमेशन विद कंटेंट, उनका हम यूज करते हैं। और जो हमारा दैट कंजंक्शन के बाद पर्सन्स को हम चेंज करते हैं और हमारे टेंस भी चेंज इसमें होते हैं। अब हम इसी तरह से हम हमारा जो सेकंड सेंटेंस है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड सेंटेंस क्या कहता है, शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय गोल्ड रिंग। दुख की बात है कि उसकी गोल्ड रिंग जो है वो लॉस्ट हो गई है, खो गई है, तो ये दुख है। तो यहां हम जो ये प्लस वर्ड है ये शो कर रहा है अनहैप्पीनेस को, सैडनेस को। तो यहां हम इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे, सी सैड ना लगा के हम यहां करेंगे, अब इसको यहां सी एक्सक्लेम। अब दुख की बात है तो बच्चों एक्सक्लेम विद सोरो, ये हमने आपको पहले बताया था। तो ये हमारी जो वर्ब आ गई सी सैड की जगह सी एक्सक्लेम विद सोरो। और जैसा हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हमने नियम सीखे थे, हम यहां दैट का उपयोग करेंगे, सी एक्सक्लेम विद सोरो दैट। अब ये आई किसके अनुसार हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार हो जाएगा जो हमारा सब्जेक्ट है। अब क्या कहता है ये, सी एक्सक्लेम विद सोरो दैट सी, और अगेन देयर इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। सी एक्सक्लेम विद सोरो दैट सी हैड लॉस्ट, ये माई ये हर में चेंज हो जाएगा, पॉजेसिव केस है, हर रिंग, full stop. So this way we will change this direct speech of exclamatory sentences like this in indirect. She exclaimed with sorrow that she had lost her ring. Now you have seen these 2 sentences, how we have converted them into indirect. It is very clear. Putting the reporting verb in this way, exclaim with joy, exclaim with sorrow, then उसके बाद दैट कंजंक्शन, दोनों में दैट कंजंक्शन लगाया और पर्सन्स को हमने उसके अकॉर्डिंग लगाया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और टेंस चेंज किया। और उसके बाद हमने जो टेंस चेंज करने के बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हट गए और हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये हमने इस प्रकार से जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस उनको हमने कन्वर्ट किया, चेंज किया। अब हम अगले जो हमारे 2 टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद सर, मैडम और प्लीज, उसका हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो किस तरह से हम चेंज करते हैं वो अभी हम देखते हैं। अब हमारे कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं जिनमें हम कई बार देखते हैं कि वो
सर मैडम से शुरुआत होते हैं या उनके आगे प्लीज वर्ड होता है, तो उनका हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा है आपके लिए, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मे आई कम इन। तो ये जो सर ये स्टार्टिंग में आ गया है, जब ये डायरेक्ट स्पीच में होता है, जब हम इनका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम किस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। सिंपल सा है, ये जो सर है इसके लिए हम रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज करते हैं। इसके लिए हम रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज करते हैं। कैसे हम रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज करेंगे, यहां देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सर मे आई कम इन। अब यहां जो है स्टूडेंट वो टीचर से कोई चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंदर आने के लिए पूछ रहा है, परमिशन उससे ले रहा है। समथिंग इज बीइंग आस्क्ड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम द टीचर। तो यहां हम इसको जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम आस्क्ड भी कर सकते हैं, और हम दूसरा आपको बता दें उसको हम रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो रिक्वेस्ट भी हो सकती है और आस्क्ड भी हो सकती है। तो हम यहाँ देखिए लिखते हैं इसको, जो हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सबसे पहले हम जो वर्ब है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। हमने सभी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये चीजें देखी है और उसको हम यहाँ भी करते हैं। द स्टूडेंट, ये हम इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, द स्टूडेंट। नाउ here in place of this said we will write here the student asked the teacher। ये हो गया, वर्ब हमारी बदल गई है, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर। नाउ इन प्लेस ऑफ दिस सर, ये हम सीखने जा रहे हैं। अब इस सर की जगह हमें सिर्फ यहां क्या लिख देना है? रेस्पेक्टफुली। ये चीज ध्यान रखनी है बस। सर मैडम जहां है वहां हमें ये वर्ड लिख देना है रेस्पेक्टफुली। इस सर की जगह, और मैडम अगर आता है मैडम की जगह हमें क्या अप्लाई कर देना है? रेस्पेक्टफुली। तो जैसा हमारा ये हो गया वर्ब चेंज करते हुए, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली। फिर हम आगे देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। मे आई कम इन, इट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन किससे शुरू है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। वो हमने पहले सीखा था इंटरोगेटिव में, जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो वो हमें यहां करना पड़ेगा। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली इफ। अब हमारा इफ के बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट, अब जैसे मैंने कहा था आपको, स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ही या सी में से दोनों में से एक लगाएंगे हम, इफ ही और सी। अब ये जो मे है ये इसका पास्ट हो जाएगा, ये माइट हो जाएगा, माइट कम। अब देखिए बच्चों, एक चीज मैं बताता हूं आपको, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो कम है ये नियरनेस का वर्ड है। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये कम गो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां हम कम ना लिख के हम यहां क्या लिखेंगे? माइट गो इन। तो इस प्रकार से ये हमारा जो थर्ड सेंटेंस था जिसमें सर या मैडम यूज हुआ है उसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली। ये जो सर है ये किससे यहां कवर होगा? रेस्पेक्टफुली से। इफ ही और सी माइट गो इन। अगर मैडम यहां होता है तो उसके लिए भी रेस्पेक्टफुली आ जाता है। लास्ट सेंटेंस है जो प्लीज से शुरू हो रहा है। He said to me, please bring me a chair. He said to me, please bring me a chair. इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, प्लीज वर्ड है तो उसके लिए आपको सभी को पता है कि हम रिक्वेस्टेड वर्ड इसमें यहां वर्ब में लाएंगे। साइड की जगह क्या ले आएंगे? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी। ये इस प्रकार
प्रकार से ये जो वर्ब है हमने रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब है उसको सामने वाला जो सेंटेंस है उसके मूड के हिसाब से हमने यहाँ इसका वर्ब चेंज कर दिया और वो हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही टू ब्रिंग हिम, ही का क्या हो गया हिम ए चेयर। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए चेयर। तो ये जो रिक्वेस्टेड वर्ड है ये इस प्लीज जो है यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग में इसको कवर कर लेता है। इसको हम एक अलग तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी काइंडली टू ब्रिंग हिम ए चेयर। हम काइंडली वर्ड का भी अगर चाहें तो हम इसमें यूज कर सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी काइंडली टू ब्रिंग हिम ए चेयर। ये काइंडली वर्ड भी हम चाहे तो इसमें यूज कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो ये भी सफिशिएंट है, ये भी अपने आप में पूर्ण इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। इफ वी वांट टू अप्लाई पुट दिस काइंडली वी कैन यूज दिस आल्सो, दिस विल आल्सो राइट। तो इस तरह से हम दो तरह से इस सेंटेंस को प्लीज वालों को हम बदल सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए चेयर या ही रिक्वेस्टेड मी काइंडली टू ब्रिंग हिम ए चेयर। प्लीज को कवर करने के लिए हम चाहे तो काइंडली वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए कुछ चीजें, जो हमने कुछ बातें सीखी वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की सीखी, एम्फेटिक इंपेरेटिव क्वेश्चन टैग्स की, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बिगिनिंग विद सर, मैडम एंड प्लीज। तो ये मैं समझता हूं कि ये वीडियो काफी लंबा हो गया और इसमें हमने आज लगभग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक था उसके लगभग सभी पार्ट्स को हमने इसमें कवर कर लिया, सभी टाइप्स के सेंटेंसेस इसमें हमने कवर कर लिए। और इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में जब तक आपकी स्कूलें नहीं खुलती है तब तक आप इन ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन आई एम कमिंग विद द न्यू वीडियो ऑन सम अदर ग्रामर टॉपिक। I would like to say you goodbye and take care.